All right. So in the last session, we started with the transcription of some um, English words, and then हमने जो है वो उर्दू words को भी थोड़ा सा I attempted to transcribe them. तो आज हम मिलके फिर से थोड़ी सी उसकी practice करेंगे, and then we would move on to the theoretical part of the lecture. Let me first see whether you guys have done the activity. Charisma, I'm not sure if it's just चलिए me जब or लोड your होगा तब हम कर लेंगे. net is lagging. Diphthongs, I think right? I'm sorry to interrupt, Charisma. I think what a better thing to do would be कि आप अगर वीडियो अपनी ऑफ कर देना तो because since you're also sharing your screen तो bandwidth का इशू होता है. So it's like Okay. voice. Okay. Is it better now? Yeah, अभी तक तो it is. चलो ठीक है. I think it's the internet today. It's not working really well. Wi-Fi तो चल नहीं रहा था, so I decided to use my own internet because वो अच्छा 2 people have turned in. चलें इनको फिर देख लेंगे. Okay, let's start the session. Mohsina, I think things are fine. So at any point, if you want to leave, you can. Okay, so today is the 6th session of decoding languages. Today we will start with phonetic transcription. हम आज थोड़ा सा उर्दू की transcription के ऊपर मजीद focus करेंगे, and then from next session onwards, in the last 2 sessions, you guys will be practicing Urdu phonetic transcription as well. And then after that, we would learn about second language acquisition, how a person acquires or learns a second language on top of learning a first language, which is his or her native language. And then we would also learn what the stages are of learning a second language, which of course are different from the stages that are a part of learning a first language. So let's start with phonetic transcription of Urdu words. इस चीज को थोड़ा गौर से देखें. Let me open the chart that I have provided you guys. So this is these are our consonants, and then a list of the vowels or diphthongs. ये हमने जो है वो consider किए थे. उसके अलावा in the previous session हमने उर्दू के certain phonemes को enlist किया था. Let me just open this chart so that it's easy. It's an easy guide. This is on your Google Classroom as well. तो अगर आपने practice करनी है तो आप वहां से refer करके कर सकते हो. Okay. So the first word that we would attempt to transcribe is sitara. ठीक है? So we would start with the consonant sa. What would come after this? Ma'am, in sound. Yes. G. This one? I think so, ma'am. I think. Sitara. All right. उसके बाद आएगा त, not t but t. ते का sound. So we would use this symbol. ठीक है जी? अब आएगा vowel a. A. Which one? This one. Hard या father के अंदर जो है, right? So sita, consonant ra, and a. A. Which one? This one? Shwa. Si, ta, ra. Right? Now similarly, mashkoor. Mashkoor. We would start with nasal consonant म, ठीक है? उसके बाद आएगा vowel a,
अब कौन सा साउंड आएगा? श, श. Take a look at your screens and let me know कि कौन सा सिंबल आएगा इसके बाद. मशकूर में म के बाद कौन सा साउंड आएगा? Take a look at the list on your screens and let me know. मैम ये जो शिप में है, शिप जी, श का साउंड जो शिप के अंदर है वो आएगा. सो मश कूर. ऊ साउंड कौन सा है? The one that exists in boot, right? It is similar to this, right? Mashkoor and boot. So we would use this particular symbol. A U with this, and then mashkoor के आखिर में आता है र. So this is how we will transcribe the word mashkoor. I expect others to also take part in this, please. It's only one student responding to me. Acha, the next word is badastur, right? So मैं आसान वाला पार्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मुश्किल वाला पूछ लेती हूँ. ब, इसके बाद क्या आएगा? D का symbol with the letter sign and then Yes, the dental the. So b, the. अब क्या आएगा? Dental T. Yes, the dental T आएगा. बदस badastur, right? Make sense? So if I give you simple words, simple Urdu words, would you be able to transcribe them today? Later in the day, I mean, aram se as homework. yes ma'am. जी ठीक है, okay, that's great. चलें, let's quickly complete these words. जिनको ताकि जिनको समझ नहीं आई उनको भी समझ आ जाए, and then we'd move on to the next part of the lecture. अच्छा, the next word is Marikh. Marikh is I think the Urdu word for Mars, right? So Mercury, yeah, Mars. Mars Mars या Mercury? I'm confused. I'm sorry. Maybe one of you could tell me. Yeah, Mars Mercury. अब कौन सा साइन आएगा? मरीख. And second last one, ये जो gamma sign है. Yes, ख साउंड जो कि गैमा के साइन से डेजिग्नेट किया जाता है. This one, मरीख. This is how you will transcribe मरीख. म, अ, र, ई and ख. ठीक है जी. The next word is गुब्बारा and then उसके बाद है हरफे आखिर. ठीक है, गुब्बारा. जी, what would be the first sound? गुब्बारा as in balloon. जी. Third last, kha. Yes, third last g. उसके बाद आएगा उ साउंड, पुट वाला यू, उ, राइट? उ, बी, आ, र एंड अ. गुब्बारा, गुब्बारा. इट रियली डिपेंड्स. यहाँ पे इसको हम किसी दूसरे वावल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हर बंदे की अपनी एक स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन होती है. हो सकता है कुछ लोग इस वावल को इलोंगेट करते हों, but to me this makes sense. So the last word is harfe akhir. So we will start with ha, a,
र फ में हर्फ के बाद कौन सा वावल आएगा? द लिस्ट इज ऑन योर स्क्रीन. मैम आई थिंक ये सेकंड में जो है, Yes, the second cardinal, the second vowel on the list, harfe. So pet. हाँ, लेकिन वो उससे भी slightly elongated मुझे लग रहा है. Harfe, 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 harfe. Yeah, harfe. You're right. Was it? Yeah, this one, harfe. And then now, अब क्या आएगा? This one, ख, आखिर, right? कुछ लोग इसको आखिर भी pronounce करते हैं. I'm not sure which one is the correct pronunciation. How do you guys pronounce this? आखिर, आप आखिर, आखिर खर, कहते हो? आखिर, खर, आखिर, खर, खर. आखिर होता है सर, अगर आप नीचे आखिर जेर कहते आती है ना हो, उसके नीचे. हाँ, अगर आप आखिर कहते हो तो दिस इज हाउ वी विल डू इट. लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट कह रहे हैं आखिर, देन हम जो आखिर में जो खर है ना, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू थिंक इट्स प्रोनाउंस्ड. ठीक है? सो वुड यू गाइस बी एबल टू ट्रांसक्राइब सम उर्दू वर्ड्स फॉर मी, 3 to 4? I will Yes. post this activity in the Google Classroom, and then before the next session आप पेपर के ऊपर इनको कर लीजिएगा, because of course ये symbols copy paste करना मुश्किल है. तो आप पेपर के ऊपर करके you can perhaps take a picture of it and then upload it over there. ठीक है जी? I will post the activity tonight. All right. Yes. Now that we've gone through this, let's move on to the theoretical part. In the previous lecture, in the previous session, we discussed what first language learning is and how it happens. कि babies के अंदर जो है वो कौन से stages से babies गुजरते हैं जब वो नई language सीखते हैं. They go from simple to complicated. शुरू में सिर्फ certain आवाजें निकालते हैं और उसके बाद एक word बोलना सीखते हैं, उसके बाद 2 words को मिला के एक छोटा सा phrase बनाना सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो है वो पूरा सेंटेंस बनाना सीखते हैं. राइट? दिस वाज द प्रोसेस. नाउ जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो वो कैनवस बिल्कुल ब्लैंक होता है. ऐसे जैसे एक आर्टिस्ट जो है वो बिल्कुल एक ब्लैंक व्हाइट कैनवस के ऊपर एक पेंटिंग बना रहा हो. इतनी मुश्किल शायद ना हो उस आर्टिस्ट को, राइट? लेकिन अगर एक पेंटिंग ऑलरेडी कैनवस के ऊपर बनी हुई है और उस पेंटिंग को बेसिस बना के दूसरी पेंटिंग बनानी है तो ऑफ कोर्स इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क. सो सिमिलरली हमने एक लैंग्वेज सीखी है, हमारे दिमाग में एक ग्रामर वायर हो चुका हुआ है, उसके ऊपर से मजीद 1 या 2 ग्रामर सीखना हमारे जहन के लिए एक मुश्किल काम है. उसके अलावा आपने ये सुना ही होगा कि बच्चे जो है वो कच्चे जहन के होते हैं, काफी मोल्डेबल उनके दिमाग होते हैं, which I mean, it is true, especially when it comes to learning a language, because children acquire their first language very easily, right? But when it comes to second language, some people struggle with learning a second language, some people do not. Even the languages that are taught at school, कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, कुछ बच्चे जो है वो स्पोकन इंग्लिश में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो है रिटन इंग्लिश में अच्छे होते हैं. तो ये डिफरेंसेस सेकंड लैंग्वेज में आ जाती हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी ये ग्रामर फिक्स हो चुका हुआ होता है और उसके ऊपर से एक नई ग्रामर सीखना, एक नई लैंग्वेज सीखना, एक नया साउंड सिस्टम सीखना हमारे लिए मुश्किल है. ये चीज हमने फोनेटिक्स में भी डिस्कस की थी कि इंग्लिश का टी और हमारा टी प्रोनाउंसिएशन वाइज एंड साउंड वाइज इट्स अ लिटिल डिफरेंट. सो दीज थिंग्स हैपन. आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज के साथ मेडल करने लग जाता है, राइट? So the process through which a person goes in order to learn a second language or a third language or any subsequent language is called the second language acquisition process.
एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, और इसके अंदर जो रिसर्च होती है उसके बेसिस पे लोग नए टीचिंग मेथड्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं और अप्लाई करते हैं अपने क्लासरूम्स के अंदर। इंग्लिश क्लासरूम्स, अगर आप में से कोई टीचर्स हैं इंग्लिश के या इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, तो इंग्लिश क्लासरूम्स के अंदर जितने भी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं in order to teach our students, be it drills, be it their exposure to the media, be it the conversations between them, right? All of that stuff, it has some research behind it. And second language acquisition जो है वो linguistics की वो field है जो research करती है इस सवाल के ऊपर कि एक इंसान एक language सीखने के बाद दूसरी language कैसे सीखता है, और उस डेटा को बेसिस बना के हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि सेकंड लैंग्वेज ज्यादा इफेक्टिवली सीखने का बेस्ट तरीका कौन सा है। और दुख की बात या शायद मजे की बात यह है कि आज तक हमें नहीं पता चला कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, because there are different ways which are equally effective. So I think it's just a combination of ways, a combination of input that comes in handy when you learn a second language. So before diving into how a person learns a second language and the theories behind it, let's go through some key concepts when it comes to a second or a foreign language. ये थोड़ी एक दो terms हैं जो I thought if you know you'd be able to identify you'd be able to differentiate between the different types of second languages. Like एक तो होती है first language, हमारी native language, उसको mother tongue भी कहते हैं, everybody is familiar with this concept. एंड सेकंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के बाद सीखते हो, और सेकंड लैंग्वेज का आपकी जिंदगी में एक एक्टिव हिस्सा होता है। You use the second language, it comes in handy in many walks of life. For example, हमारे लिए English second language है, क्योंकि इंग्लिश हम स्कूल में भी यूज करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ भी सर्टेन पॉइंट्स पे यूज करते हैं, हमने अपने एकेडमिक एसेज वगैरह इंग्लिश में लिखने होते हैं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, राइट? सो इंग्लिश इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। सो ऐसी लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज ना हो बट इट इज स्टिल अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ would be a second language. Like for me, English and Urdu both are second languages. And maybe for some of you guys, Urdu is your first language and English is your second language. Maybe perhaps some of you have Punjabi as their first language and English and Urdu as second languages, right? So ये होता है second language. अब second languages की भी certain types, सब types कहते हैं इसको second language की, या आप चाहें तो इस चीज को बिल्कुल second language के concept से अलग करके consider कर लें. There is this thing called a foreign language. Foreign language वो language होती है which is a second language, but हमारे लाइफ में उसका कोई खास मकसद नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में कम ही लोग हैं जिनको फ्रेंच आती है. सो इफ यू गाइज लर्न फ्रेंच एज अ सेकंड लैंग्वेज, इट वुड बी अ फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज इमीडिएट इन्वायरमेंट में उसका कोई यूज नहीं. So that's the difference between a second and a foreign language. Foreign language आपके immediate environment में use नहीं हो रही होती. Classic examples: English is your second language, French would be foreign language, Farsi would be foreign language, Russian would be foreign language. क्योंकि Russian सीख तो आप लोगे लेकिन उसको immediately आप जो है अपने immediate environment में as such use नहीं कर रहे होगे, right? So what do you guys think about the status of Chinese as a language? Do Foreign you think language, it's of your course. second language or foreign language? Foreign. I think one could say that at this point it is a foreign language, but it might become a second language really depending on what happens in the country. Where I come from, we interact a lot with the Chinese people, and of course वहाँ पे भी it is a foreign language, but अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने Chinese सीखना शुरू कर दिया, तो maybe it is on its way to become a second language. मैं ये नहीं कह रही कि it is going to become a second language. It might become a second language because मुझे अभी से नहीं पता कि future में क्या होने वाला है. But yes, that's a very interesting concept, how some languages have a potential to become your second language, to change their status from foreign to second language. This does happen. Do you know Chinese, ma'am?
No, I do not. It's a very difficult language to acquire. My brother knows Chinese. तो बहुत Okay. मुश्किल वो तो I think proper courses वगैरह करने होते हैं. It's a very difficult thing to acquire. I've heard, but of course impossible तो नहीं होगा. So, ma'am, what's your motivation behind learning Farsi? My motivation behind learning Farsi, my father knows Farsi, and wo he's usually consuming their media a lot. So growing up, I was exposed to their music and their talk shows. So I just developed this interest, and maybe just out of क्या उसको कहेंगे out of my desire to go back to that time, I'm trying to learn Farsi. If that मैं makes sense, समझा आप रोमी nostalgia और की वजह इकबाल को से. पढ़ना चाहती हैं. नहीं वो I have a more personal reason कि it's something nostalgic. So I want to learn the same language, and maybe deep down I want to like get closer to my father based on क्योंकि अब उनको वो उस तरह का म्यूजिक पसंद है, वो उन्होंने उस तरह की किताबें पढ़ी हुई हैं, तो perhaps if I learn the same language I'd be able to have conversations with him about that as well. So that's my motivation behind it. अच्छा जी. There is this concept called a library language. Library language वो language होती है जो आप सिर्फ इसीलिए सीखते हो क्योंकि जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो या अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उस फील्ड में किताबें ही उस लैंग्वेज में लिखी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को लैटिन सीखनी पड़ी थी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल द नॉलेज दैट एग्जिस्टेड इन लैटिन लैंग्वेज. जिन किताबों की ट्रांसलेशन नहीं होती, जिन किताबों की ट्रांसलेशन नहीं एग्जिस्ट करती, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उन किताबों को समझने के लिए वो लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी पड़ती है. उसको कहते हैं लाइब्रेरी लैंग्वेज. अ लॉट ऑफ पीपल had to learn German language in order to understand German philosophers. And then there were some people who were kind enough to translate their books into English. आजकल काफी सारी चीजें ट्रांसलेटेड फॉर्म में मिल जाती हैं, तो लाइब्रेरी लैंग्वेजेस जो हैं उनका इतनी कॉमनैलिटी नहीं है कि लोग अब लैटिन सीखें. कुछ लोग सीख भी जाते हैं. अच्छा, उसके अलावा देयर इज ऑक्सिलरी लैंग्वेज. ऑक्सिलरी लैंग्वेज वो होती है जो आप किसी ऑफिशियल काम के लिए, किसी ऑफिशियल या पॉलिटिकल पर्पस के लिए सीखते हो. फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन जो है वो एसोसिएटेड है विद अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी and they go to Sindh and they have to learn a phrase or two in Sindhi to propagate their political propaganda, then it would be an auxiliary language. उसमें आपकी नीड या तो ऑफिशियल होती है या तो पॉलिटिकल होती है, राइट. या फिर अगर आपको फील्ड ट्रिप पे भेजा गया है टू कोयटा एंड you make an attempt to learn some parts of their language in order to mingle with the general public, in order to appear friendly to them, right? So that would be an auxiliary language. अच्छा, जब L2 learner language सीखता है एंड इवन L1 learner भी, तो लैंग्वेज की इन फॉर्म्स को सीखता है. आई मीन, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस हैपेंस एट वंस, बट सबसे पहले एक इंसान जो है वो लेक्सिकॉन डेवलप करता है. लेक्सिकॉन इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी से मुराद द लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट यू नो इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. आपने ये सुना ही होगा कि उसकी तो बड़ी एक्सटेंसिव वोकैबुलरी है, उसे बड़े बड़े अल्फाज आते हैं. सो वोकैबुलरी इज जस्ट सिंपली द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट यू नो इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. जो छोटे बच्चे होते हैं वो साथ साथ वोकैबुलरी एक्वायर करते जाते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी तो प्रीटी सिंपल होती है. इट स्टार्ट्स विद 7 वर्ड्स एंड देन इट गोज ऑन. लेकिन एडल्ट्स के केस में वी लर्न द वोकैबुलरी फर्स्ट. हम पहले 1000 कोई वर्ड सीख लेते हैं, एंड देन वी मूव ऑन, एंड देन वी मूव ऑन टू मोर्फोलॉजी, फॉर्मिंग वर्ड्स, सिंटैक्स वगैरह, और फिर हमारी वोकैबुलरी भी साथ साथ इंक्रीज होती जाती है. एंड हम फोनोलॉजिकल लेवल पे एक लैंग्वेज को सीखते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस साइमल्टेनियसली. ठीक है, खाना पकने की यार, somebody's getting us interrupted. Okay.
So phonology means किसी लैंग्वेज का साउंड सिस्टम सीखना. जैसे हमने इंग्लिश और उर्दू के साउंड्स में जो माइनर डिफरेंसेस थी उनको देखा था कि उनका ट और हमारा ट कितना डिफरेंट है. उनका ट इज एल्वियोलर और हमारा जो ट है वो हम थोड़ा सा उसको पैलेटल कर देते हैं, राइट? सो ये डिफरेंस थी. आई थिंक दुआ, आई थिंक आपका माइक अनम्यूटेड है. Is it दुआ? How do I? Okay, okay, okay. सो हम जो नई लैंग्वेज हमने सीखनी है हम उसके साउंड सिस्टम को भी एक्वायर करते हैं टू सम एक्सटेंट. ठीक है, जैसे मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें सर्टेन साउंड्स हैं जो आपकी, जी जी नो प्रॉब्लम हुआ. तो इस तरह के कुछ साउंड्स हैं जो शायद आपके साउंड सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते. हाँ, फॉर श्योर नहीं करते. तो अगर आप कोशिश करोगे मेरी लैंग्वेज सीखने की तो आपको पहले वो साउंड जो है वो मास्टर करने होंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू अ ड्रिल. ठीक है, मैं आपको उनमें से एक साउंड बता देती हूँ और आप कोशिश करो टू प्रोनाउंस इट. ठीक है, so when we have to say water, we say in my native language we say thil, thil. Can you repeat this after me? Can you attempt to repeat this after me? Thil. Sil या थिल? It's somewhere in between these two. Is it that sound, the sound that is represented with theta? Sorry? Ma'am, the theta symbol से जो represent होती है वो नहीं sound? नहीं, it's interdental but also it's not exactly theta वाला sound क्योंकि उसमें थिल 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 उसमें एक टी का एस्पेक्ट भी आ रहा है, थोड़ा जी की तरह भी प्रोनाउंस हो रहा है. इट्स हैपनिंग समवेयर बिटवीन द एल्वियोलर रिज एंड द टीथ. थ थ नॉट स, नॉट थ, अ मिक्स ऑफ दीज टू, अ मिक्स ऑफ दीज साउंड्स. इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली प्रोनाउंस कर रहे हो. सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, राइट? आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपका जो वोकल ट्रैक्ट है वो यूज टू हो जाएगा इस साउंड को प्रोनाउंस करने के. तो ऐसा नहीं है कि फिजिकली इम्पॉसिबल है इसको प्रोनाउंस करना. आप इसलिए प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके लैंग्वेज सिस्टम में वो साउंड है ही नहीं. तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा इस चीज को एक्वायर करने के लिए. सो बेसिकली हम जब दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसका साउंड सिस्टम भी देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं जिनको हमने पहले मास्टर करना है, राइट? इसीलिए लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बोल बोल के मुंह टेढ़ा हो गया, बिकॉज द वोकल ट्रैक्ट इज नॉट यूज्ड टू इट, or certain sounds that English speaking people make, right? उसके अलावा morphological level पे हम language सीखते हैं, words को, नए words को बनाना, different word fragments को एक दूसरे के साथ attach करके नए words को बनाना सीखते हैं, right? And then syntax level पे जो है एक learner language acquire करता है. Syntax क्या है? It is the grammar or the structure of the sentence. It's okay, Lena, just try to connect from a more stable connection. कोशिश कीजिएगा. अच्छा जी, सो मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे एक लर्नर एक्वायर करता है सेकंड लैंग्वेज को. सिंटैक्स लेवल पे करता है. सिंटैक्स लेवल क्या है? सिंटैक्स आप कंसीडर कर लें, इट्स जस्ट अनदर वर्ड फॉर ग्रामर या सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, सिंटैक्स लेवल पे एक्वायर करने का मतलब उनके जो ग्रामर के रूल्स हैं वो हमें समझने पड़ते हैं, राइट? जैसे इंग्लिश और उर्दू का सेंटेंस वर्ब सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन डिफरेंट है, राइट? तो वो चीज, उस चीज का समझ होना is called syntax level पे acquiring a language. And then discourse level पे भी आप language को acquire करते हो. discourse का क्या मतलब है? communicating information across the sentence boundary. For example, a paragraph, an essay, a poem, a book, a research article, all of this is discourse. Sentences को मिला के आप information communicate करते हो, be it verbal form में, किसी speech के form में, या फिर written form में, उसको कहते हैं discourse. आप एक level तक syntax को master करते हो, then you start creating discourse. बच्चों को जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले उनको साउंड्स पढ़ाए जाते हैं. आप ये सोचें, इस लेवल का सोचें कि सबसे पहले बच्चों को साउंड्स और लेक्सिकॉन पढ़ाया जाता है, राइट? सबसे पहले बच्चों को बताते हैं कि ये आई है, ये नोज है, ये ईयर है, राइट?
उसके बाद साउंड सिस्टम पढ़ाया जाता है या उसके साथ साथ साउंड सिस्टम पढ़ाया जाता है कि ए फॉर बी फॉर ब, राइट। उसके बाद मोर्फोलॉजी पे आ जाते हैं टाइम के साथ साथ। आई थिंक फर्स्ट सेकंड ग्रेड में ये सब कराया जाता है, जिसमें बॉल और एप्पल जैसे वर्ड्स जो है बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बच्चों को सेंटेंसेस बनाना सिखाया जाता है, ये भी डिफरेंट लेवल्स पे। पहले फ्रेजेस बनाना हो सकता है सिखा रहे हो, और उसके बाद सेंटेंस बनाना। वंस द चाइल्ड gets some level of understanding of syntax, then the child is asked to write something like a bunch of sentences, a small passage. Mostly हमारे ज़माने में it used to start with an essay on myself, right? सो ये लेवल्स जो हैं वो जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर के लेवल्स हैं, उसी लेवल पे सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई भी जाती है। अगर हम एडल्ट्स को भी सेकंड लैंग्वेज सिखाना चाहेंगे, स्पेशली ऐसी लैंग्वेज जिससे वो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को अपनी नेटिव लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करूंगी तो मैं इसी तरह स्टार्ट करूंगी। आई विल फर्स्ट टेल यू सम कॉमन वर्ड्स, ठीक है, जो आपको मेमोराइज करने होंगे, एंड देन मैं आप लोगों को वो जो एडिशनल साउंड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी, एंड देन वी मूव ऑन टू वर्ड फेज, एंड देन फ्रेज, एंड देन सॉरी, एंड वर्ड फेज के बाद वी वुड मूव ऑन टू फ्रेजेस, small sentences, full sentences, and then perhaps at some point in time you would be able to give me a speech in my language. At least that would be the goal, right? So अच्छा, जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग की दो मेजर थियरीज थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थियोरेटिकल पॉइंट्स थे जो कि अपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वन वाज बिहेवियरिज्म एंड द अदर वाज इन्नेटिज्म, राइट। बिहेवियरिज्म ये कह रहा था कि बच्चा लैंग्वेज मियरली अपनी इन्वायरमेंट से सीखता है थ्रू हैबिट फॉर्मेशन, राइट। The kid mimics the sounds or the phrases or the sentences that he or she is exposed to, and when they mimic it correctly they are usually rewarded for this behavior, and as a result of that the child learns the language. सेकेंड लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए भी अर्ली ऑन बिहेवियरिस्ट अप्रोच यूज किया गया था, जिसमें दे सेड दैट ऑल बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट. So second language is also learned through interaction with the environment. When you're exposed, for example, in other words, when you're exposed to a second language, you would be able to learn it. ठीक है? क्यों? क्योंकि language learning is just like developing any other habit. I'm not saying this. This particular theory is saying this कि language learning जो है वो किसी भी दूसरी habit की तरह through repetition and reward थ्रू इमिटेशन हम सीख सकते हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था कि प्योरली बिहेवियरिस्ट टर्म्स में हम लैंग्वेज लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन हमारे दिमाग में देयर हैज टू बी सम एजेंसी दैट कंट्रोल्स लैंग्वेज लर्निंग, राइट। उसके बाद थोड़ी मजीद डेवलपमेंट आई, पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी अ लिटिल मोर, तो पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर, लाइक लैंग्वेज को स्ट्रक्चर के लेवल पे उन्होंने देखना शुरू किया कि नहीं, मे बी second language learning has something to do with the structure of the second and first language. इन थ्योरिस्ट ने ये कहा कि हमें फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज को कंपेयर करना चाहिए उसके स्ट्रक्चर के लेवल पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लेवल पे। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इफ यू आर कंफ्यूज्ड। इस चीज को कंट्रास्टिव एनालिसिस भी कहते हैं, बिकॉज सॉरी अबाउट दिस मिस्टेक। अच्छा, सो इस चीज को कंट्रास्टिव एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें यू आर डूइंग अ कंट्रास्टिव or comparative analysis of two languages, the first language and the second language, right? But terminology से confused ना हो, let's just call it structuralism or CA for contrastive analysis. ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, आपने ये देखना है कि first language और second language के बीच में structural differences and commonalities क्या है. This is how these early theorists tried to explain second language learning. किस तरह उन्होंने कहा कि फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में चीजें ट्रांसफर होती है। फर्स्ट लैंग्वेज का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड लैंग्वेज का ग्रामर जो हमारा डेवलप हो रहा होता है उस पे असरअंदाज होता है। किस तरह? ये बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट लैंग्वेज का और सेकंड लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सिमिलर है तो वो होगी पॉजिटिव ट्रांसफर,
ठीक है, जैसे उर्दू और पंजाबी का सेंटेंस स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है. सो लेट्स से इफ समबडीज फर्स्ट लैंग्वेज इज उर्दू एंड सेकंड लैंग्वेज इज पंजाबी, तो मैं क्या करूं एंड मैं की करा आर वेरी सिमिलर. सो दिस वुड बी पॉजिटिव ट्रांसफर, कि दिमाग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सेम स्ट्रक्चर इज बीइंग अप्लाइड इन L1 and L2 टुगेदर, राइट. एंड देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव ट्रांसफर, कि क्या होगा अगर जो है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज स्ट्रक्चरली डिफरेंट. कुछ चीजों में स्ट्रक्चरली लैंग्वेजेस डिफरेंट होंगे, कुछ में सेम होंगे, राइट. सो डिफरेंस के केस में क्या होगा, तो वो होगा नेगेटिव ट्रांसफर. जब L1 का सर्टेन स्ट्रक्चर या फिर एक सर्टेन ग्रामेटिकल एस्पेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम L2, तो L2 में वो ग्रामेटिकल चेंज आने के बजाय L1 वाला ही रिटेन होगा. जैसे दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास लोग अक्सर ये कह देते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई शुड आई गो, दे से व्हाई आई शुड गो, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो है वो उर्दू से शायद उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं. या फिर मोर रिलेटेबल एग्जांपल इज व्हेन यू हैव टू से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम जब दर्द होने की बात करते हैं तो इसे हो रहा है, राइट. लेकिन जब आपने यही बात इंग्लिश में कहनी होती है तो द मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग इट इज आई हैव पेन इन माय स्टमक, या फिर माय स्टमक एक्स. अगर आपने आई हैव का वो फ्रेज यूज करना है तो यू से आई हैव पेन इन माय स्टमक, यू डू नॉट से आई एम हैविंग पेन इन माय स्टमक. बट ये अच्छे इंग्लिश के टीचर्स ये गलती कर जाते हैं, दे से आई एम हैविंग पेन इन माय स्टमक. Why? Because they're directly translating it from Urdu, or in other words, जो L1 structure है, जो उर्दू का structure है, वो is being used in English का structure as well. This is an example of negative transfer. Could you think of some more examples of negative transfer? Anything that you must have noticed, maybe from Urdu to Punjabi, Punjabi to Urdu, Pashto to Urdu. Yes, guys, are you with me? Yes, but Ma'am, I I couldn't can't. think of an example. Can't think of an अच्छा. हमारी लैंग्वेज में whenever we have to talk about one thing, हम एक लफ्ज के साथ अन लगा लेते हैं, which means one हमारी लैंग्वेज में, ठीक है. जैसे when I have to say there is a cup, there is one cup, I will have to say cup and b. कप के साथ मैं अन लगाऊंगी to show that it's one cup, right? So sometimes when people speak Urdu, especially those who are not so fluent in Urdu, they say cup ek hai. So instead of saying एक कप है आपके पास, they say कप एक है. वो एक को आगे पीछे कर देते हैं because ब्रिटिश के अंदर वो आगे पीछे है. तो अभी तो शायद आपके जहन में एग्जांपल्स ना आ रहे हो, but this is a very common thing. कभी कभी बैठे बैठे आप नोटिस कर लेते हो. Perhaps you would be able to notice these things more after this workshop. तो ये आप जरूर नोटिस कीजिएगा कि हमारी अपनी स्पीच में या फिर दूसरों की स्पीच में ये नेगेटिव ट्रांसफर किस तरह हो रहा है. तो इस तरह की चीजों को बेसिस बना के these early theorists who supported structuralism said कि हमें लैंग्वेज को, फर्स्ट लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल लेवल पे एनालाइज करना चाहिए कि उनमें डिफरेंसेस क्या हैं और उनमें कॉमनैलिटीज क्या हैं. सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज को, ठीक है. फिर उसके बाद हम पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रांसफर देखेंगे, और जहां पे नेगेटिव ट्रांसफर हो रही है उन एरियाज पे फोकस करेंगे, एंड देन वी वुड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन देम, ठीक है. So this was again a very simple way of trying to explain second language learning. Of course we're dealing with human brain, ये ज्यादा complicated सा process था, तो इस पे भी बहुत questions raise हुए. मेजर inadequacy जो है वो कंट्रास्टिव एनालिसिस की या स्ट्रक्चरलिज्म की वो ये थी कि कई पॉइंट्स पे when they actually studied people who were learning a second language, लोगों को उस लैंग्वेज को पता चला कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें L1 और L2 का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन फिर भी L2 का स्ट्रक्चर एक्वायर नहीं हो रहा, पॉजिटिव ट्रांसफर हो ही नहीं रही, which according to structuralism हो जानी चाहिए थी हर हाल में, ठीक है. और दूसरी चीज ये थी कि कभी कभी नेगेटिव ट्रांसफर होने के हाई चांसेस थे क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट था.
लेकिन वहां बिल्कुल नेगेटिव ट्रांसफर नहीं हो रही थी. The people were able to, the learners were able to acquire the particular grammatical structure really well. So research basically, in other words, research did not support this. उसके बाद सक्सेसिव कुछ और भी थ्योरीज आई थी. एरर एनालिसिस के पीछे अब इट माइट साउंड अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या थे इन ऑर्डर टू लर्न सेकंड लैंग्वेज लर्निंग. तो एरर एनालिसिस ये कहता है कि हमें फर्स्ट लैंग्वेज को छोड़ देना चाहिए और हमें सेकंड लैंग्वेज को भी छोड़ देना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि एक इंसान, एक लर्नर जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, वो ग्रामर के किस पॉइंट पे है. जैसे फ्लुएंसी होती है ना हमारी, इंटरमीडिएट फ्लुएंसी, एडवांस्ड फ्लुएंसी. तो उन्होंने कहा कि इस लेवल पे हम उस बंदे का ग्रामर चेक करें. हम फर्स्ट लैंग्वेज के ग्रामर को भी छोड़ दें, सेकंड लैंग्वेज के प्रॉपर ग्रामर को भी छोड़ दें. हम ये देखें कि एक लर्नर की जो अपनी ग्रामर बनी हुई है, which of course would be incomplete, हम उस इनकम्प्लीट ग्रामर को स्टडी करें और उसके अंदर देखें कि कहाँ कहाँ एरर्स एग्जिस्ट करते हैं. इसलिए इसका इस कॉन्सेप्ट का नाम है एरर एनालिसिस. दे ऑल्सो सजेस्टेड कि हम एरर्स को बैड हैबिट्स की तरह ना ट्रीट करें, बट वी शुड ट्रीट देम एज दोज पेन पॉइंट्स जिन पे हमने काम करना है. ठीक है. एंड देन हम इन एरर्स को इवेल्युएट करें. आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज एरर्स वी बी एबल टू इवेल्युएट द एरर्स, एंड देन हम एरिया फोकस जो है वो एजुकेशन दें सेकंड लैंग्वेज लर्नर को, ताकि वो लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाए. एंड एट द सेम टाइम इंटर लैंग्वेज थ्योरी आई, विच इज वेरी सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट. इंटर लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज दैट यू हैव before becoming fluent in the second language or near native in the second language. So अभी जो मैं अंग्रेजी आपके साथ बोल रही होती हूँ वो मेरी इंटर लैंग्वेज है, because of course I cannot speak like a native. अभी भी मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ, तो वो मेरी इंटर लैंग्वेज होगी. To illustrate this in a better manner, अगर ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है and you're on your way to learn a second language, आप इधर कहीं एग्जिस्ट करते हो. You can never get here because it's not your first language. There will always be कोई ना कोई कमी होगी. ठीक है. So we're always over here. Maybe some of us are over here start पे, maybe some of us are in the middle, maybe some of us are over here, but this particular phase जिसमें आप एक second language learn कर रहे होते हो, the space between being not fluent at all and being extremely fluent, this is called interlanguage. And in most cases जब हम second language सीखते हैं तो हम interlanguage के phase में ही होते हैं. So interlanguage theory suggested that ये जो हमारे intermediate states हैं of a learner, इनको study करना चाहिए, and then at every stage the learner has some grammatical rules for himself or herself. लर्नर का अपना ग्रामर होता है. तो अभी जितनी मुझे इंग्लिश आती है, आई वुड से इट्स समवेयर बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फ्लुएंट. ठीक है. तो अभी मेरा इंटर लैंग्वेज वाला फेज है. ठीक है. तो अभी मेरा अपना ग्रामर होगा. जो मेरी गलतियां होंगी ना, वो मेरे ग्रामर का हिस्सा होगा. देयर वुड बी नथिंग रॉन्ग विद इट. इट वुड बी माय ओन ग्रामर. इंटर लैंग्वेज थ्योरी सजेस्ट कि हर लर्नर का अपना ग्रामर होता है, हर सेकंड लैंग्वेज लर्नर का अपना ग्रामर होता है. मेरे केस में मेरे उर्दू का अपना ग्रामर है, मेरे इंग्लिश का अपना ग्रामर है. नन ऑफ दीज टू ग्रामर्स आर परफेक्ट because I am still learning. You cannot completely learn a second language. अगर आप ग्रामर में भी कमाल कर जाओ, हर चीज सीख जाओ, तो फिर आप प्रोनाउंसिएशन में रह जाते हो, because near native pronunciation बहुत मुश्किल होती है. ठीक है जी. So this is how they decided to research second language learning, but of course इसके अंदर भी loopholes थे. And then the major problem with these theories was that people weren't able to put a finger on one thing that could be improved in order to make second language learning easier, right? एक और hypothesis थी, natural order hypothesis. इसके बारे में आपका जानना थोड़ा important है, because this is a very interesting thing that scientists, linguists found out. जब एक इंसान second language सीखता है, तो सर्टेन चीजों को पहले सीखता है, सर्टेन चीजों को बाद में सीखता है. नाउ ऑफ कोर्स वोकैबुलरी हम सबसे पहले सीखते हैं, कॉमन वर्ड्स, राइट? यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी प्लीज का वर्ड जानते हैं, राइट? लेकिन ग्रामेटिकल लेवल पे भी
हम सर्टेन चीजों को पहले सीख लेते हैं, सर्टेन चीजों को बाद में सीख लेते हैं। ये इंग्लिश का नेचुरल ऑर्डर है। दिस माइट डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। जैसे प्रोग्रेसिव, कॉपीला, इन चीजों पे फोकस ना करें। आई नो दीज आर स्कैरी टर्म्स, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ ing और डूइंग समथिंग लाइक स्कीइंग, ईटिंग, ये जो ing लगाने वाला कॉन्सेप्ट है वो इंसान पहले सीखता है जब वो अंग्रेजी सीख रहा हो एज अ सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद s और es का कॉन्सेप्ट सीखता है कि किस चीज के साथ s लगाना है, es लगाना है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, to be able to differentiate between the words boy and boys. उसके बाद the idea of being, I am, right? वो सीखता है। उसके बाद articles का की यूजेज सीखता है, the, on, etc. ठीक है, so on and so forth. So there is a pattern. There is a pattern of learning the grammatical rules of a second language, and this pattern differs in every language. There are some similarities, but there are some differences as well. So natural order hypothesis ये कहता है कि language के जो rules हैं वो they are acquired in a predictable manner, so they should be taught in a predictable manner as well. ठीक है। एंड देन इनपुट हाइपोथेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स स्पेशली। अगर आप में से कोई इंग्लिश के टीचर्स हैं या टीचर्स इन जनरल हैं, तो ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस एंड इनपुट हाइपोथेसिस ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लास में इन चीजों को इंकॉर्पोरेट करते हैं, बस हमें इस चीज का आइडिया नहीं है कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं, बिकॉज टीचर ट्रेनिंग में आपको थ्योरी तो पढ़ाई ऑफ कोर्स नहीं जाती। इनपुट हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक लर्नर, किसी भी सेकंड लैंग्वेज का लर्नर जो है वो तब प्रोग्रेस करता है जब, अगर वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 7 पे एग्जिस्ट करता हो, हम उसको इनपुट 8 का दे दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा, आपका लर्नर यहां एग्जिस्ट करता है, ये सेकंड लास्ट पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, आप उनको ये इनपुट दोगे, अपने इनपुट से थोड़ा सा बढ़ाकर, सॉरी, उनके कॉम्पिटेंस से थोड़ा सा अगले लेवल का इनपुट दोगे, तो they would be able to acquire this as well. They cannot jump from this to this. They can go from this to this. मतलब अपनी कॉम्पिटेंस से एक लेवल आगे आप उनको इनपुट देते हो। इसलिए हाँ, हम जो है टीचर्स बच्चों को सक्सेसिवली पढ़ाते हैं और हमें हमेशा we always find a teacher who is fluent in a particular language, right? It's not like you're learning with the student. I mean, of course, you're learning with the student. You learn certain things from the student as well. लेकिन आपका level of language competence student से हमेशा ज्यादा होता है as a language teacher, right? वो क्यों होता है? ताकि हम उनको वो input दे सकें जो उनको चाहिए। वो जिस level पे exist करते हैं उससे एक level आगे की हमने input देनी होती है। अब हम इस चीज को class में कैसे incorporate करते हैं, वो इस तरह किया जाता है कि आप पहले एक चीज, फॉर एग्जाम्पल, आपने एस और ई एस का कॉन्सेप्ट उनको पढ़ा दिया, सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेसन इस तरह डिजाइन होगा कि वो आपको जो है ये आर्टिकल्स जो है उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। ये लेसन इसी तरह डिजाइन हुए हैं रिसर्च के बेसिस पे ही, स्पेशली फॉर चाइल्ड लैंग्वेज लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बच्चों की जो होती है, उसमें लेसन इसी तरह डिजाइन हुए हैं कि वो I+1 या फिर उनकी जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, उससे एक लेवल आगे की जो है वो उनको इनपुट मिल जाए, राइट? अगर आप आज उनको एस और ईएस पढ़ा रहे हो तो अगली क्लास में आप उनको आर्टिकल्स पढ़ा रहे होगे। सो ऑल ऑफ दिस रिसर्च, अब इनमें से कोई भी थ्योरी एज सच गलत नहीं है, all of them are right. Even behaviorism is true on some level, right? So all of them are right. ये ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है, इनपुट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इफेक्टिव है, रिसर्च ने बताया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एरर एनालिसिस करें तो वो भी एक हद तक इफेक्टिव होता है। इंटर लैंग्वेज के ग्रामर को स्टडी करना भी, इट इज अ वेरी फ्रूटफुल प्रोसेस। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपके जो इंग्लिश से रिलेटेड लेसन प्लान्स बनते हैं वो जो है क्रिएट किए जाते हैं, which is why we prefer to have more and more modern English books. I remember when I was a child, हम स्पेशल एक बड़ी महंगी किताब खरीदते थे। Our teachers would make us buy that book, और हमें आज समझ आ रही है कि उसका फायदा हमें क्या होना था। हमें ट्रेडिशनल तरीके से इंग्लिश नहीं सिखाई शायद, इसलिए आज थोड़ी बहुत आ जाती है,
So again, you're not supposed to memorize all of these, but I just want you to know how complicated it is to theorize second language learning. अब exactly हमें नहीं पता कि second language learning कैसे होती है, दिमाग में कौन सी तार को हम छेड़ेंगे तो जो है second language ठीक से समझ आ जाएगी या हम fluent हो जाएंगे second language में. इसलिए इन सब तरीकों को simultaneously classroom के अंदर use किया जाता है. और एज अ टीचर, अगर आप में से कोई टीचर है तो आप नोटिस करोगे, इंग्लिश के टीचर हैं अगर, तो आप नोटिस करोगे कि ये सारी चीजें क्लास में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं. आई थिंक इट वाज सम ऑक्सफोर्ड समथिंग, वो बहुत मोटी सी किताब थी. आई रिमेम्बर आई वाज इन 4th और 5th ग्रेड. तो वो ऐसी किताब, अब आई बिलोंग टू अ पहाड़ी इलाका, तो वहां पे तो वी डू नॉट रियली हैव एक्सेस टू लाइब्रेरीज एंड बिग बुक्स. तो वो हम बल्क में मंगवाते थे शहर से, और उस जमाने में 500 की हुआ करती थी, विच वाज अ बिग डील. I don't exactly remember, but if I do remember, I will let you know. बच्चों की बुक थी वो, उसके अंदर बुक भी थी, वर्क बुक भी थी, सब कुछ था उसके अंदर, बड़ी इंटरैक्टिव किस्म की थी. कैम्ब्रिज थी या ऑक्सफोर्ड, इस तरह का कोई नाम था. इट वाज वन ऑफ दीज, जो कि आई थिंक आजकल काफी सारे स्कूल्स में इट इज वेरी कॉमन. जो रैन एंड वेस्टर्न, मार्टिन तो नहीं थी? जी जी सॉरी. रैन एंड मार्टिन. नहीं नहीं, रन एंड मार्टिन नहीं थी. उसका नाम इधर ऑक्सफोर्ड था या कैम्ब्रिज था, इस तरह का कुछ था. इट वाज वन ऑफ दोज बुक्स जो कि वेस्ट में पढ़ाई जाती हैं बच्चों को. और हमारे एक टीचर थे, गॉड ब्लेस हिम, वो गए थे और वहां पे उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे इस तरह लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो वो जो है ना उस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे. एंड आई वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल, तो वो वहां पे उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया था. और वो बुक्स भी हमें खुद खरीदनी पड़ी थी, काफी मतलब खर्चा वगैरह उठाना पड़ता था हमारे घर वालों को. बट अभी मुझे रियलाइज होता है कि वो कितनी हमारे लिए अच्छी चीज थी. आई थिंक इट वाज दिस वन जो आप कह रहे हो. इट वाज मेंट फॉर 5th 6th ग्रेड स्टूडेंट्स. एनीवे, so let's move on to the next part. Again, don't be scared of the theories हमेशा थोड़ी confusing होती हैं, और हम इसकी depth में भी नहीं जा रहे. I just wanted you guys to know how people try to theorize second language learning. And you must have noticed first language learning इतना complicated नहीं था. छोटा बच्चा है, language सीख ली, ठीक है. लेकिन second language learning जो है वो थोड़ी सी complicated हो जाती है, because of course हम एक ऑलरेडी फिक्स ग्रामर के ऊपर एक और ग्रामर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, एक ग्रामर तो सीख लिया, दूसरा ग्रामर भी सीख लिया. अब ये भी कोशिश करनी है हमारे दिमाग ने कि वो दोनों ग्रामर जो हैं वो आपस में कोई खराबी ना क्रिएट करें, राइट. जैसे अगर आपको 3 लैंग्वेज आती हैं, तो आपके दिमाग में 3 डिफरेंट ग्रामर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो इट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग दैट योर ब्रेन इज एबल टू let you maintain those 3 languages, 3 different grammars. Isn't that amazing? अच्छा, so let's go through very quickly because I think अब हमारे पास 15 मिनट रह गए. Different stages of second language learning, जिस तरह हमने बेबीज के केस में डिस्कस किया था, फर्स्ट लैंग्वेज के केस में डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या होता है. if any of you recall, especially the moms, सबसे पहले a child starts to make certain sounds which are not exactly words. Babbling वाला phase था सबसे पहले, or maybe it was the second phase, जिसमें बच्चा babble कर रहा होता है. And then the kid starts using, or the kid starts using certain words. 6 से 7 वर्ड्स बच्चे को आ जाते हैं जो उसकी जिंदगी के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड फॉर मदर, द वर्ड फॉर फूड, the word for, I'm not sure what else is important to a baby other than the mom and the food. Maybe pain, I don't know. So इस तरह के जो बाहर basic जाना बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जी जी, बाहर जाना बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बाहर होता है. जाना, यस, मुझे उठाओ कहने के लिए जो उनका साउंड होता है वो. एंड उसके अलावा मे बी अ पर्टिकुलर वर्ड दैट डिपिक्ट्स लीव मी अलोन, बिकॉज बच्चे थोड़े इरिटेबल भी हो जाते हैं कुछ सर्टेन सिचुएशंस के अंदर. एंड परहैप्स वाटर. I don't know at what age kids are given water. Do we give children water right away? नहीं ना.
मे बी जब से वो पानी पीना शुरू करते हैं वो पानी के लिए भी एक वर्ड डेवलप करें बिकॉज इट इज ऑल्सो अ नीड। उसके अलावा इफ दे आर अटैच टू एनी अदर पर्सन अदर देन देयर मॉम, जैसे दादा दादी और देयर फादर, वो उनके लिए भी वर्ड डेवलप करते हैं, फिर उनकी वोकैबुलरी जो है वो टाइम के साथ साथ एक्सटेंड होती जाती है। अच्छा, लेकिन इस केस में क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के केस में देयर इज अ स्टेज ऑफ प्री प्रोडक्शन। ठीक है, प्री प्रोडक्शन के स्टेज में whenever I think about pre-production, it always reminds me of our we used to have a house help, तो वो pre-production stage पे थी। She is such a great example of pre-production because she had learned some vocabulary of English, like 2 to 3 words, क्योंकि उनको बहुत शौक था इंग्लिश सीखने का। एंड देन वो कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस भी करती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन वो बोलने की कोशिश करती थी। सो ये वो प्री प्रोडक्शन स्टेज होती है जिसमें आप अभी वोकैबुलरी वर्ड्स को थोड़ा लर्न करना शुरू करते हो। जैसे वो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती, हमारी सोसाइटी के अंदर वो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन प्लीज और ओके के अल्फाज समझ जाते हैं। ठीक है, तो दोज पीपल, एंड ऑफ कोर्स वो फुल सेंटेंसेस बना नहीं सकते, तो वो किसी से इंग्लिश बोलते नहीं हैं, लेकिन वो सेल्फ टॉक जरूर करते हैं इंग्लिश में इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस एंड गेट बेटर एंड बेटर। ठीक है, तो ये होती है प्री प्रोडक्शन स्टेज। दिस इज द इनिशियल स्टेज जिससे गुजरते हो आप व्हेन यू बिकम fluent, sorry, when you start learning a second language. I remember being in this particular phase during my journey of learning Punjabi. अभी भी मैंने पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से एक्वायर नहीं की है, बट आई रिमेम्बर लर्निंग वर्ड्स लाइक मंजी एंड छाबा, एंड मैंने पहले वर्ड्स बड़े याद किए, और फिर मैं उनकी एक्चुअली लिस्ट बनाती थी इन माय फोन बिकॉज आई वाज रियली कीन ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट। तो उसके बाद फिर अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ कि आई हैव स्टॉप्ड एंगेजिंग इन सेल्फ टॉक, बट प्रीवियसली आई यूज्ड टू एंगेज इन सेल्फ टॉक इन पंजाबी। अभी मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं एक आध फ्रेज बोल लेती। अच्छा, उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, अर्ली प्रोडक्शन। आई थिंक पंजाबी के केस में आई एम हियर, I'm in my early production phase. Early production में क्या होता है? You have a limited vocabulary up to 1,000 words. Up to 1,000 words. I don't know 1,000 words in Punjabi, but I'm developing my vocabulary. इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं stage पे हूँ. So a learner knows up to 1,000 words, and they have begun to form short sentences. ठीक है, so ये एक सिंपल बट अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्री प्रोडक्शन ये स्टेज होती है जिसमें वोकैबुलरी जो है वो लिमिटेड होती है, and the learner has begun to form short sentences. Now some of these sentences could be now some of these sentences could be grammatically correct and some of them could be incorrect, but the learner has gained enough confidence to create sentences. वर्ड्स का पता होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी बात होती है दो अल्फाज को जोड़ के सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज को कंसिडर करें ना, तब आपको समझ आएगी कि वर्ड याद करना इतना मुश्किल नहीं है, दो वर्ड्स को मिला के उनकी सेंस बनाना इज अ डिफिकल्ट थिंग। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है जी, उसके बाद आती है स्पीच इमर्जेंस फेज, जिसमें वोकैबुलरी थोड़ी मजीद एक्सटेंड हो जाती है। A learner has a vocabulary of up to 3,000 words, and then the learners have begun forming short phrases and full sentences. यहाँ पे आके ग्रामर भी थोड़ी बेहतर हो जाती है और full sentences rather than phrases जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इस पॉइंट पे the learner starts communicating more and more in the second language. एंड इस पॉइंट के बाद जब वो कम्युनिकेट ज्यादा कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स द मोर यू कम्युनिकेट, द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर यू बिकम। आगे वाले फेजेस जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। अक्सर लोग जब इंग्लिश सीखते हैं ना या कोशिश करते हैं इंग्लिश सीखने की, यहाँ पे दे क्विट, व्हिच इज अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज उनको नहीं पता कि थोड़ी सी पुश चाहिए होती है यहाँ तक आने के लिए, और आप यहाँ आ जाते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता बिकॉज यू आर गुड इनफ यहाँ पे आके, right? So early production and speech emergence phases are very important if you have kids.
जो इस स्टेज पे अभी हैं इंग्लिश लर्निंग के, उर्दू लर्निंग के, या किसी भी और लैंग्वेज के लर्निंग के, या अगर आपके घर में कोई एल्डरली है जो कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहता है, या कोई भी है, कोई फ्रेंड है, या फिर आप खुद एक लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, नई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, तो इफ यू आर एट दिस स्टेज, दिस इज वेयर यू नीड टू सपोर्ट योरसेल्फ या फिर अदर पीपल मोर, बिकॉज यहाँ पे आपको पुश चाहिए होती है. दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट एज वेल, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सेंटेंसेस और आपसे सेंटेंसेस बन नहीं रहे होते, बिकॉज ग्रामर डेवलप करना काफी मुश्किल काम होता है. सो स्पेशली इफ यू हैव किड्स, प्लीज सपोर्ट देम मोर एंड मोर व्हेन दे आर इन दिस फेज. अच्छा, उसके बाद आ जाती है इंटरमीडिएट फ्लुएंसी, जिसमें वोकैबुलरी मजीद एक्सटेंड हो जाती है. यू कैन you know up to 6,000 words. Learners start communicating through writing and speech using complex sentences. आप essays लिख सकते हो अपनी टारगेट लैंग्वेज में, आप लोगों से कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो अपनी टारगेट लैंग्वेज में, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यू कैन होल्ड अ वन टू वन कॉन्वर्सेशन इन योर टारगेट लैंग्वेज, राइट. उसके बाद एडवांस फ्लुएंसी आती है. एडवांस फ्लुएंसी जो है वो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, बिकॉज इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन एडवांस फ्लुएंसी. I wouldn't call myself a fluent person. I would say that I'm somewhere over here and I'm on my way towards over here. Really depends on how you look at it. लेकिन 2 साल एक लैंग्वेज आप एक्टिवली लर्न करते हो, तो 2 साल तक आप अगर कोशिश करते हो ठीक से, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि you're on your journey towards fluency. And then it takes more and more time, up to 10 years, to reach near native fluency. Near native is very important because we can never achieve native like fluency. क्यों? क्योंकि एज अ चाइल्ड हमने वो लैंग्वेज नहीं सीखी होती. हमारे दिमाग पे एक पेंटिंग, हमारे दिमाग के कैनवस पे एक पेंटिंग ऑलरेडी बन चुकी होती है. सो वी कैन नॉट डू द सेम एज आवर फर्स्ट लैंग्वेज. इसीलिए जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसी में हम अक्सर सोचते हैं. बट अगेन वो लर्नर टू लर्नर डिपेंड करता है, क्योंकि अब मेरे केस में आई यूज माई सेकेंड लैंग्वेज मोर देन आई डू माई फर्स्ट लैंग्वेज. अब मैं बड़ा लिमिटेड, अब मैं सिर्फ अपनी दादी से या नानी से बात करूं तभी मैं ब्रिटिश की यूज करती हूँ. इवन विद माई पेरेंट्स आई स्पीक अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू एंड ब्रिटिश की, राइट. सो अब तो मैंने सोचना भी इंग्लिश और उर्दू में शुरू कर दिया है. मुझे जब ख्वाब आते हैं तो वो भी काफी मल्टीलिंगुअल ख्वाब आते हैं. तो perhaps you guys can share कि आप किस लैंग्वेज में सोचते हो. It is an interesting thing to consider. Do you dream in any other language? Urdu mostly. I'm Punjabi, but Urdu. And it's your I native dream in language? Urdu. Punjabi is my native language, but I dream in अच्छा, Urdu. you dream in Urdu. I also एक तो think in ये Urdu. प्रॉब्लम है कि I don't remember my dreams, but I remember this one specific dream जिसमें there was some English involved, and I was amazed कि अच्छा, your brain can do that. Because I originally thought that you can dream in your own first language only. मे भी इस चीज के बारे में पढ़ के मैं आपको अगली क्लास में बताती हूँ कि ये अगर होता है, मल्टीलिंगुअल ख्वाब आप देखते हो, तो ये कितना कॉमन है और सबके साथ होता है या नहीं होता, ये सारी चीजें. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी पॉइंटेड आउट कि आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में ख्वाब देखते हुए सेकंड लैंग्वेज में. दिस इज इंटरेस्टिंग. एनीवे, वी विल हैव अ डिस्कशन on this in the next session. You think in English and you have dreamt in English. अच्छा, yes. अब it depends ना, हो सकता है आप इंग्लिश से बहुत ज्यादा एक्सपोज रहे हो. जैसे मेरे केस में है कि अभी आई एम जस्ट सराउंडेड विद माय फ्रेंड्स, आई डू नॉट लिव विद माय फैमिली. सो मैं तो इंग्लिश और उर्दू का मिक्स ही बोल रही होती हूँ. ब्रिटिश की तो बहुत कम बोलती हूँ. तो अब आई थिंक इन इंग्लिश एज वेल. Is it? Oh yeah, it's 6:13 a.m. I don't know what happened to it, but I usually follow my phone's time. I'm sorry if it has caused any confusion. अच्छा. Ma'am, I have a question. जी, Are you finished, ma'am? जी, sure. Ma'am, मेरा क्वेश्चन ये है कि what's the best method to learn second language? मतलब हमारे यहाँ जो मेथड होता है वो नॉर्मली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, जो हमें एक स्कूल मिनट, में पढ़ाते हैं वो. हमारे यहाँ मेथड ये है कि हम बच्चे को शुरू करते हैं, जो कि मुझे बड़ा फरसूदा लगता है,
कि हम बच्चे को एबीसी शुरू करते हैं, फिर हम उसको स्पेलिंग्स उसके करेक्ट करवाते हैं, फिर हम उसके एक एक लफ्ज का तर्जुमा बताते हैं, फिर ऐसा ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। क्या ये बेटर मेथड है या ये बेटर मेथड है कि हम उससे स्टार्ट ही सेंटेंस से या स्टोरी से इस चीज से स्टार्ट करवाएं? कौन सा बेटर मेथड है? अब देखिए, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें इनमें से हर मेथड जो यूज किया जाता है, जो स्कूल में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसको भी रिसर्च ने सपोर्ट किया है। इंस्टेंट एक्सपोजर वाला जो मेथड है, जिसमें बच्चे को आप इंग्लिश कार्टून्स दिखा रहे हो बचपन से, तो बच्चा फ्लुएंट हो गया इंग्लिश में, ऐसे भी होते हुए देखा होगा आपने, वो भी इफेक्टिव मेथड है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इफेक्टिव। सो मैं रिसर्च के स्टैंड पॉइंट से ये इसका जवाब आपको कोई डेफिनेट सा नहीं दे सकती। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर मैं आपको कहूँ, या बेस्ड ऑन वट एवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव इन दिस फील्ड, आई बिलीव दैट of course all of these methods are effective in their own way. The best way to learn is to, if you can, expose a child to their target language early on. आप बच्चे को 2 फर्स्ट लैंग्वेजेस दे दें सीखने को, बच्चा सीख जाएगा और दोनों को बड़े अच्छे से सीखेगा, बिकॉज दिमाग कच्चा है। आप अपने बेबी को लेकिन हम जो मेथड शुरू करते हैं एबीसी से, एबीसी इज द जी, करेक्ट मेथड? आई डोंट थिंक। ये तो एक इंतहाई फरसूदा मेथड मुझे लगता है कि आप अच्छा, उसे एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो जिसका कोई मानी ही नहीं है, जो बिल्कुल मीनिंगलेस चीज है, यूजलेस चीज है। देखिए आप जो कह रहे हो, इट मेक्स सेंस, एक्सक्यूज इट मी, मैं मेक्स सेंस ऑन कुछ वन बोलूं? लेवल। जी 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 प्लीज। ABC एक्चुअली अब वाकई नहीं सिखाते। अब तो जब प्री स्कूल में बच्चा होता है तो उसको साउंड सिखाते हैं। अब अच्छा, फोनी सिखाते हैं, और हाँ जी, फोनिक्स सिखाते हैं, और फिर वो एबकड से वर्ड्स बनाना, जैसे ब एट बैट, और फिर वो फ्रेजेस, और फिर वो सेंटेंसेस पे आ जाता है। और इन द मीनवाइल राइट साइमल्टेनियसली उसको सिखा रहे होते हैं स्टोरी टेलिंग। जो सर्कल टाइम होता है क्लासेस के अंदर, उसमें स्टोरी टेलिंग भी हो रही होती है, राइट और साथ साथ और भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिसके अंदर टीचर उनसे इंग्लिश में ही बात कर रही होती है, जिससे वो वर्ड्स पिकअप भी कर ही रहे होते हैं साथ साथ। ये तो Right. ये ये जो किन स्कूलों में फोनिक्स, प्रैक्टिस है? कैन यू प्लीज टेल मी, ये ये प्रैक्टिस किन बीकन स्कूलों में है? हाउस में, मेरे बच्चे तो बीकन हाउस के हैं, तो वहां पर तो यही प्रैक्टिस है। आई एम नॉट श्योर कि जो थोड़े आई डोंट नो व्हाट वुड बी द करेक्ट वर्ड टू यूज, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें क्या मतलब अभी उनके अंदर भी इतनी प्रोग्रेस हुई है कि वो लैंग्वेज को इस लेवल पे सिखाते हैं? बिकॉज ये जो नहीं एक्सप्लेन कर मैम, रहे हैं उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। नहीं है। हाँ, और आई थिंक उनमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही यूज किया जाता है, वही पुराना तरीका जिसमें बच्चे को जबरदस्ती ग्रामर के रूल्स आप रटवा रहे होते हो। कोई भी रूल आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे ग्रामर का, वो आप नहीं सीख सकोगे। तो उसका रट्टा मारना, या फिर हम जो लैंग्वेज रूल्स के हिसाब से एक्टिव को पैसिव में करो, ये जो चीज है ना, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। इसलिए वी हैव गॉटन रिड ऑफ इट, और एटलीस्ट सम प्लेसेस इन पाकिस्तान हैव गॉटन रिड ऑफ इट, राइट? अभी हम लैंग्वेज को इस तरह नहीं पढ़ाते, टेंसेस नहीं पढ़ाते। अभी बच्चे को आप नेचुरल लैंग्वेज से एक्सपोज करते हो, ठीक है, बच्चे के साथ इंग्लिश बोलते हो, और बच्चे को जो है आप ऑफ कोर्स डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाते हो। पहले साउंड लेवल पे पढ़ाते हो, फिर वर्ड लेवल पे पढ़ाते हो, फिर सेंटेंस लेवल पे, बट एट द सेम टाइम यू आर गिविंग देम इनपुट, नेटिव लाइक इनपुट। अभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो इंग्लिश की टीचर्स हैं उनका भी बड़ा नेटिव लाइक एक्सेंट होता है। What they're trying to do, they're trying to indoctrinate the students to acquire that particular accent as well. तो आजकल कुछ जगह बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज वेरी सैड जो चीज सारे स्कूल चाहिए वो काफी लिमिटेड स्कूल्स में एग्जिस्ट करती है। एंड टू आंसर द क्वेश्चन दैट द जेंटलमैन आस्क्ड, देयर इज नो परफेक्ट वे, बट बीकन हाउस एक्सेट्रा, दैट इज, अगर आप अपने बच्चे को या आपके घर में कोई बच्चा है उसको एक सेकंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, आइडियली द किड शुड बी एक्सपोज टू इट राइट अवे।
सो अ किड विद अ सेकंड लैंग्वेज, उसमें ये होगा कि एक लैंग्वेज में हाईली फ्लुएंट होगा, सेकंड लैंग्वेज में नेटिव आ सकती है, नेटिव लाइक नहीं आ सकती। तो यू किड मल्टीलिंगुअल। आजकल एक और मजे की चीज है कि हमारी सोसाइटी, बल्कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर बच्चे मल्टीलिंगुअल होते जा रहे हैं, बिकॉज पीपल ग्रुप्स आर मैरिंग ईच अदर, राइट। तो उनके जो बच्चे हैं उनको 2 लैंग्वेजेस सीखने को मिल रही है, तो लोग फिनोमिनॉन। जी, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। यस मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा। हम मोस्टली